Good afternoon, students. I hope you all are doing well, and you must also have seen my previous videos. Till now, we have read chapters till chapter 7. Chapter 8 is not in your syllabus this year, so we are skipping that. Chapter 9 we are starting. Its name is Data Structure, Linear List, Part 1. Linear list is actually a big chapter, so I'll break it down in 2 or 3 videos. So this is the first part, binary search. In this video we will talk about what is a data, what is a data structure, and the basics of data structure. How many type of data structure we will read or we can see in Python, and then we will start the linear list, our main topic. In linear list you will see how many operations you can perform on a linear list as an array, and then we will talk about the searching operation, and in searching, linear search and binary search. So this is the agenda for our video. After this topic we will talk about in next video. I have already sent you the PDF whatever I am going to cover in this video, so you can read from there also and you can read from here also. So next, first of all, that was the introduction, data structure 1, linear list, and here you can see 7 type of topics. Introduction, elementary data representation, what is data actually, what are the different data structure, what are the operations which you can perform, and then the main topics, linear list, linear data structure, and nested or two-dimensional list in Python. So first we talk about, see here, these two things. First part of this chapter introduces data structure, basic terminology used for them and different commonly used data structure. ठीक है, और सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम, टॉक अबाउट लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट पार्ट हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या है, ठीक है, छोटी छोटी मैं आपको चीजें बता रही हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको अगर पूरी रीडिंग करनी है तो यू कैन डू इट लेटर ऑल्सो. आई हैव सेंट यू PDF. So elementary data representation, what is data actually? तो data can be in form of raw data or data item. Raw data आपको पता है, जब हम database पढ़ते हैं तो we already first talk about raw data information. Raw data is a set of facts actually that doesn't have any meaning. So simply values or set of values. But data item represents single unit of values of certain type. It means if we are having some integers and we have covered this in this format, or I can see this may be roll number list, or this may be price list of any item. तो ये क्या हो गया, this is a information. ठीक है, तो डेटा आइटम मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है. तो रॉ डेटा एंड डेटा आइटम्स आर द टू terms. Data items are used as per their associated data types. So data item is different thing हो गया. अब data type, it means suppose I have stored some integer values in this format, so its data type can be integer or it can be boolean or it can be float. तो आपने पढ़ा है डेटा टाइप, स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं हम जब शुरू करते हैं पाइथन पढ़ना. तो अब हमने कितने टर्म पढ़ी, रॉ डेटा पढ़ा, डेटा आइटम पढ़ा, डेटा टाइप सीखा है. नेक्स्ट इज what is data structure. A data structure is a named group of data of different data types which is stored in a specific way and can be processed as a single unit. A data structure has well-defined operation, behavior and properties. So I may say linear list or list, simple list. अगर हम बात करें list, you have read in class 11. So this is a type of data structure. Tuple can be a type of data structure. Dictionary can be a type of data structure because it has its associated क्या होता है, associated operations, उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज, तो उनसे जुड़ी हुई कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो आप उन पे परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज data type versus data structure. Data type defines a set of values along with well-defined operations stating its input output behavior. Example भी दिया हुआ, you cannot put decimal point in an integer. आपको कोई इंटीजर वैल्यू आपने दी है तो आप उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा सकते. और टू स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाई. ठीक है, तो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, बूलियन इज अ डेटा टाइप,
इंटीजर इज अ डेटा टाइप, फ्लोट इज अ डेटा टाइप। तो ये सब क्या हो गया आपका, ये डेटा टाइप का इनका एक अपना बिहेवियर होता है और आप उस पर जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ आप वही कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन दैट क्लियरली डिफाइंस अ वे ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग डेटा स्टोर्ड इन अ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि स्टैक की बात करते हैं। स्टैक क्या होता है बताती हूँ आपको। आप शादी में खाना खाना जाते हैं, सारी प्लेट्स रखी होती हैं, राइट, एक के ऊपर एक। तो जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी है, वो सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी है वो सबसे पहले जाएगी। ये आपका होता है स्टैक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस एट वन एंड ओनली। तो यहाँ पे इंसर्शन भी यही होता है और डिलीशन भी यही होता है। लिस्ट की बात करें, लिस्ट एज अ कलेक्शन डेटा टाइप विच कैन स्टोर हेट्रोजेनस डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट। आपको पता है लिस्ट में आप एक साथ, ये आपने लिस्ट बनाई तो यहाँ पे आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे आप नेम भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो डेटा टाइप हो गया। बट व्हेन यू इम्प्लीमेंट लिस्ट एज अ डेटा स्ट्रक्चर, तो इट्स बिहेवियर इज क्लियरली प्री डिसाइडेड, मतलब इट विल स्टोर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। और आपको सर्च करना है तो लिस्ट एलिमेंट विल बी प्री सॉर्टेड एंड सो फोर्थ। जैसे आप बाइनरी सर्च करते हैं तो आपको पता है कि यू मस्ट हैव sorted data. So when you use the data structure, it has some predefined operations on it. आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर टपल है, डिक्शनरी है, स्टैक है, क्यू है, लिस्ट है, these all are data structure which have some properties, which have some operations associated with them. So no need to worry. So now the topic is different data structures. अब डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल मीन्स क्या होता है, दीज आर नॉर्मली बिल्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब बेसिक जो होते हैं, जैसे इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन एटसेट्रा। नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर कैन बी टर्म्ड एज सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, एरे और लीनियर लिस्ट। तो आपको याद रखना है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो लीनियर लिस्ट होती है वो आती है। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करके कुछ बनाते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। तो दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर मतलब सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर, जैसे आपने जो सेव किया है वो सिंपल इस फॉर्मेट में हो सकता है एक के बाद एक। बट नॉन लीनियर मल्टी लेवल ये हो सकता है, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, तो ये हो गया आपका नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर। इट इज सेड टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस लाइक स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट और लीनियर लिस्ट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। नॉन लीनियर में क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया अभी बना के, ये जो है नॉन लीनियर का एग्जांपल है, इट इज ट्री। अभी इसको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे आप नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो पाइथन की जो बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पाइथन्स बिल्ट इन, देखिए ये जो है पाइथन्स बिल्ट इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। बिल्ट इन मतलब अपने आप बने हुए होते हैं। इन द सेम वे दिस इज द, ये आपका बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, चार्ट टाइप बना हुआ है। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। लीनियर, नॉन लीनियर तीनों यहाँ पे आते हैं और ये होता है। और ये सेम चीज यहाँ पे दी हुई है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं। इन नेक्स्ट पेज वी विल सी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इज, इसको डिटेल में थोड़ा देख रहे हैं बस, लीनियर लिस्ट एरेज, ठीक है। नेम लिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट। एरे के अंदर सिमिलर डेटा एलिमेंट होते हैं, इसलिए उसको लीनियर लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट देखो, लिस्ट और लीनियर लिस्ट में बस ये डिफरेंस होता है, लिस्ट कैन हैव हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, ठीक है, बट इन लीनियर लिस्ट यू कैन हैव ओनली होमोजीनियस। सो दिस इज कॉल्ड एरे। इफ लीनियर लिस्ट में आपके 10 एलिमेंट्स हैं, उसका नाम है एल, तो उसके एलिमेंट आपको पता ही है, उनकी जो पोजीशन होगी 0, फिर 1, फिर 2, आगे नाम होता है, आगे इनकी पोजीशन होती है। एरेज कैन बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। इन पाइथन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एरेज आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू, पूछ सकते हैं आपसे बायो में भी कभी, एरेज आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट डेटा टाइप्स एज लीनियर लिस्ट और थ्रू नंपाई एरेज।
नेक्स्ट स्टैक, मैंने बताया था आपको शादी में खाना खाने जाने वाला आप जाते हैं, प्लेट्स होती हैं, रेफर्स टू द लिस्ट स्टोर्ड एंड असेस्ड इन अ स्पेशल वे, उसको बोलते हैं लीफो, यानी कि जो लास्ट में आया है वही फर्स्ट जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक फॉलो होती है। इन स्टैक्स इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड, इसको हम बोलते हैं टॉप। अंडरस्टूड? Stack is similar to a stack of plates. Note that plates are inserted or removed only from the top of the stack. Next is Q. Q are FIFO. FIFO means first in first out. तो आप जो अपनी प्रेयर की रखते हैं तो वो दैट इज FIFO. FIFO means आप स्टार्टिंग में सबसे पहले आए हैं तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आए हैं तो सबसे पहले ही बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इंसर्शन देखो, लेकिन ये इंसर्शन कहाँ पे होता है, पीछे, यानी जुड़ते जाते हैं पीछे, जो नया बच्चा आएगा वो पीछे जाएगा तो उसको बोलते हैं रियर एंड, और जहाँ से डिलीशन होता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। सो क्यू इज मच द सेम एज अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर दियर टर्न टू वोट। फर्स्ट पर्सन विल बी द फर्स्ट टू वोट एंड न्यू पर्सन कहाँ से ज्वाइन करेगा, रियर एंड से। तो आपको दो टर्म याद रखनी है, रियर एंड फ्रंट, आपको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट इज लिंक्ड लिस्ट। देखिए लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, मैंने बताया था लीनियर लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट अलग अलग होता है। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लिंक्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ नोड। In node there are two sections. First section is information. Information means whatever data you want to store. And next section is called next. Next keeps the reference of the next node which is stored in the linked list. ठीक है, तो info part में stores the information and the reference pointer part which points to that is stores the reference of the next element. ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये दो तरह की हो सकती है, ये है आपकी सिंगली लिंक्ड लिस्ट जिसमें सिंगल नोड नोड होता है, लेकिन उसमें दो ही सेक्शन होते हैं। लेकिन डब्ल्यू में इसमें देखिए आपकी प्रीवियस और नेक्स्ट दो लिंक दी हुई है, तो ये प्रीवियस वाला बताएगा आपको कि इससे पहले वाला एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है, एंड नेक्स्ट वाला बताएगा कि नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ हुआ है। देखो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे ये कोई हमारी एक मेमोरी पोजीशन है, यहाँ पे कोई और पोजीशन है, यहाँ पे कोई और पोजीशन है, तो ये यहाँ पे हो सकता है पार्ट। फिर ये बताएगा कि ये जो नोड है ये कहाँ पे सेव है, दूसरा वो यहाँ पे हो सकता है, फिर इससे लिंक यहाँ हो सकता है, यहाँ से कहीं और हो सकता है। तो इट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट हैव कंटिन्यूअस मेमोरी। ठीक है, हमारे पास मेमोरी तो है बट कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है, वो मेमोरी स्कैटर्ड है, तो उस जगह ऐसे यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट इज ट्रीज। ट्रीज क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया भी था ट्रीज स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से। इसमें जो टॉप मोस्ट नोड होता है इट इज कॉल्ड रूट ऑफ द ट्री एंड रूट ऑफ द ट्री एंड द अदर आर कॉल्ड लीव्स ऑफ द ट्री। ठीक है, ईच ऑफ द नोड्स हैड सम रेफरेंस पॉइंटर्स पॉइंटिंग टू ऑफ द नोड्स बिलो इट। तो हर किसी नोड के पास में एक रेफरेंस पॉइंटर होता है जो ये बताता है कि उससे नीचे वाला नोड कहाँ पे सेव है। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ऑपरेशंस आर इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रेवर्सल, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। आपको जरूर याद रखना है। इंसर्शन आप समझ गए होंगे, एडिशन ऑफ अ न्यू एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डिलीशन रिमूवल, आपको वहां से कोई डिलीट कर देना है कि भाई ये जो वैल्यू है 49 ये डेटा स्ट्रक्चर में से डिलीट कर देनी है आपको। ठीक है, तो इसको पहले सर्च करना पड़ता है फिर इसको रिमूव करना पड़ता है। सर्चिंग में आपको सिर्फ सर्च करना है और ये बताना है कि इस पोजीशन पे सेव है डेटा। ट्रेवर्सल मीन्स प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स ऑफ इट वन बाय वन। इसमें कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, जस्ट आपको देखते जाना है फर्स्ट वाला ये है, सेकेंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, फोर्थ ये, इसको बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। सॉर्टिंग, अरेंजिंग in a specified order, it can be decreasing or it can be increasing. Merging, combining elements of two similar data structure, ठीक है, to form a new data structure of same type। यानी कि एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड मतलब साथ में रख दिया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना L1 + L2 इस तरह से, तो वो साथ में लिस्ट आ जाती है ना, कॉन्कैटिनेशन जो करते हैं, दिस इज कॉल्ड मर्जिंग। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, बायो में ही पूछ सकते हैं कौन कौन से ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक, लीनियर लिस्ट। सो इट्स एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस।
When elements of linear structure are homogeneous and are represented in memory by means of sequential, बहुत इंपॉर्टेंट है sequential, मतलब जैसे अगर ये मेमोरी है तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है, एक एक एलिमेंट. तो these structure are called arrays. Linear register arrays are one of the simplest data structure and are very easy to traverse, search, sort, etc. An array stores a list of finite number, यानी कि आपका नंबर फिक्स होता है, 10 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, इतने भी, लेकिन इसके होमोजीनियस यानी एक ही तरह के हो सकते हैं. कितने एलिमेंट हैं वो कहलाता है इसकी लेंथ या साइज या रेंज ऑफ अ लीनियर लिस्ट. अब इसकी साइज कैसे निकालते हैं, देखिए. अपर बाउंड मतलब दिया हुआ है, लोअर बाउंड दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है. एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे. यदि एक लीनियर लिस्ट एरे के अंदर ये सारे एलिमेंट सेव है -7 से लेके 15 तक. अपर बाउंड मतलब सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 15 सबसे लास्ट में. लोअर बाउंड मतलब सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, -7, तो -7. तो अपर बाउंड -7 + 1, तो इसमें 23 एलिमेंट्स हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर. समझ में आया. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये बताया कि आपने जो सिस्टम वही देखेंगे जो आपने पहले 11th क्लास में पढ़ा है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सर्चिंग ऑपरेशन. सर्चिंग कैन बी लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ठीक है. ये दोनों कंसेप्ट आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आई थिंक हमने पहले चीज़ आज भी किया होगा, लिस्ट में जब किया होगा या कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा. नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मुझे भी याद नहीं है. लीनियर सर्च में क्या होता है, मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ. यदि आपको कोई एरे दिया है, उसमें अगर 10 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से सेव हो जाएंगे 10 पोजीशन. उसके बाद में इफ यू वांट टू सर्च फॉर एन एलिमेंट, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. You have to see to every element to it, and then wherever you find that particular element, this is the position of that element, and then you will have to produce the result that this element is stored at position this. Understood? समझ में आ गया. बहुत सिंपल है. तो सारा डेटा स्टोर्ड है, उसमें आपको एक एलिमेंट को ही सर्च करना है. दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च और इट कैन बी सेड एज सीक्वेंशियल सर्च ऑल्सो. सो दिस इज द algorithm here. Sorry. This is the algorithm. So algorithm you can read on your own. This is the same which I will tell you in your program. So I will start with program. So linear search का आपको प्रोग्राम बनाना है. So you first have written here a function. I hope you must have been familiar with the function concept now. So def is the फंक्शन. स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं जो कीवर्ड होता है, एंड इट इज द नेम ऑफ फंक्शन. देन एरे के ये AR एंड आइटम जो आपको सर्च करना है. I = 0 मीन्स यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0 पोजीशन. I less than लेंथ ऑफ AR. लेंथ ऑफ AR मीन्स एरे की लेंथ कितनी है, उससे आपको कम तक चलना है. यू ऑलरेडी नो वी स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1. तो ऑब्वियसली हम लेस देन रखते हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं रखते हैं, क्योंकि एक कम तक जाना होता है ना हमको, 0 पोजीशन से एक कम तक. सपोज कीजिए इट इज हैविंग 10 एलिमेंट, सो यू हैव टू सर्च फ्रॉम 0 to 9 पोजीशन ओनली. एंड AR नॉट इक्वल्स टू आइटम. तो इट इज saying that if you are searching and if the element at the position 0 to 9 or whatever it is not equal to item, मतलब आपको आइटम वहां पे नहीं मिला है, अगर आपको 0 पोजीशन पे नहीं मिला तो क्या करना है, I = I + 1 मीन्स अब I की वैल्यू हो जाएगी 1. तो आपको पहली पोजीशन पे देखना है, फिर सेकंड पे देखना है, फिर थर्ड पे देखना है, और देखते ही जाना है जब तक कि आपको आइटम नहीं मिले. इफ I इज लेस देन लेंथ ऑफ R, तो आपको I रिटर्न कर देना है, अदरवाइज फॉल्स कर देना है. ठीक है. अगर I की वैल्यू उससे कम है तो मतलब लूप चलेगा, और अगर I की वैल्यू ऑब्वियसली उससे कम नहीं होगी और तो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप बंद हो जाता है. ठीक है. अब आगे देखिए हम यहाँ पे आपको मेन जो प्रोग्राम है वो है जहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. एक्चुअली आपको इनपुट करना है डिजायर्ड लीनियर लिस्ट साइज, मैक्सिमम 50 तक आप कर सकते हैं. तो आपको जितने भी आपको देना है, आपको कितना एलिमेंट चाहिए, सपोज कीजिए मैंने कहा 10 चाहिए, तो प्रिंट करना है एंटर एलिमेंट्स फॉर लीनियर लिस्ट एंड AR = 0 × n.
इट मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या कर रहा है आपको, इनिशियलाइज्ड लिस्ट ऑफ साइज n विद जीरोज, यानी कि n मतलब 10 एलिमेंट चाहिए, और जो 10 एलिमेंट की जो मैंने लिस्ट बनाई है उनके अंदर अभी सबके अंदर क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, मतलब इनिशियलाइज किया है 0 से। नेक्स्ट पेज वी विल सी फॉर i इन रेंज n। अब उस रेंज के अंदर आपको क्या करना है, एलिमेंट लेते जाना है, आपको पता है एक के बाद एक ऐसे लेना पड़ेगा, आपको फोर लूप का यूज करना पड़ेगा, पहले एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरह से आपको एंटर कराना होता है। तो इनपुट एलिमेंट stri, मतलब जो पहले पोजीशन है उस पे जो भी आपका एलिमेंट आएगा वो आपका यहाँ पे, जैसे पहली पोजीशन 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, इस तरह से। तो stri का मतलब क्या, आई जो है वो इंटीजर नंबर है, सपोज 0 है तो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ में स्ट्रिंग तभी कॉन्केटिनेट होती है जब वो दोनों स्ट्रिंग हो आपस में, ठीक है। अगर आप सिंपल आई लिखेंगे तो वो कॉन्केटिनेट नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको आपने क्या किया, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इनपुट फंक्शन से इनपुट मिल जाएगा और वो इंटीजर वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज कीजिए 88 से लेके आपने 10 तक यहाँ पे आपने 7 एलिमेंट इंसर्ट करा दिए, आपने लिखा था 7 एलिमेंट मुझे इंसर्ट कराने हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा इंट करना है आपको, कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है, तो ये 11, यानी कि आपको वैल्यू सर्च करनी है 11, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू एल सर्च AR आइटम, व्हाट इज दिस। अब आपने ये जो फंक्शन कॉल किया है, अब यहाँ से जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन जब कॉल करेंगे तो आप पीछे जाके जब देखेंगे तो ये पूरे एरे में सर्च करेगा उस आइटम को एक के बाद एक, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया एलिमेंट फाउंड, अगर आपको इंडेक्स मिल जाता है तो वहां से आई रिटर्न हो रहा है, मतलब इंडेक्स रिटर्न हो रहा है। तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, तो इंडेक्स आ गया यहाँ पे 5 इंडेक्स पे, यानी कि देखो 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स हो गई 5 और पोजीशन हो गई 6, क्योंकि पोजीशन हमेशा +1 मतलब एक ज्यादा होती है। पहली पोजीशन है, ये पहली पोजीशन है, 0 तो कोई पोजीशन नहीं हो सकती, तो इट इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो इंडेक्स हो गया 5 बट पोजीशन इज 6। एंटर, फिर नेक्स्ट ऐसे ही आप करते जाएंगे, अगर आपको करते जाना है तो एंटर एलिमेंट टू बी सर्च फॉर, और फिर आपने 78 सर्च किया, अगर आपने ये करके देखा तो आपका आंसर आएगा सॉरी गिवन एलिमेंट कुड नॉट बी फाउंड। मैंने आपको यहाँ पे वर्बली समझाने की कोशिश की है, आप इसको अपने पीसी पे करके देखो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अभी ऑलरेडी ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है, तो बाइनरी सर्च जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको वो कल समझाऊंगी, जस्ट ऑनली बाइनरी सर्च इन मीनिंग। ओके, काम करते हैं, अभी ये इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे तो फिर वो एक अपना फ्लो बिगड़ जाता है। तो हम फटाफट से इसको एक बार कवर करते हैं। बाइनरी सर्च जो होती है, बाइनरी सर्च में गिवन आइटम जो होता है उसको मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजंस में सर्च किया जाता है। देखो मैं आपको पहले बहुत बार समझा चुकी हूँ, बाइनरी सर्च के अंदर एक सॉर्टेड एलिमेंट लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ हो गया 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ, और फिर इसका मिड एलिमेंट निकालते हैं, और जो भी आपको अगर सर्च करना है अगर उसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो फिर हम इधर की तरफ सर्च करना शुरू कर देते हैं, और अगर वैल्यू कम है तो इधर की तरफ सर्च करना शुरू करते हैं। तो व्हाट इज दिस, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है फिर इसका मिड एलिमेंट निकाला जाता है, फिर अगर उससे कम होता है तो सिर्फ यहाँ सर्च करते हैं, अदरवाइज यहाँ सर्च करते हैं। इट मीन्स आफ्टर ईच नंबर ऑफ कंपैरिजन, आपका जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होता है वो हाफ होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो खुद से, ये मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट पेज फटाफट हम प्रोग्राम देखेंगे ये इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है आपने, एक बिगनिंग, यहाँ पे ये एल्गोरिथम है, सॉरी ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम किया है। इन द सेम वे एरे एंड आइटम दोनों चीज आपको सर्च करनी है। आपने बिगनिंग की है 0 से, जैसे आपने वहां पे i इक्वल टू 0 किया था, इन द सेम वे। और आपने लास्ट भी एक एलिमेंट लिया है जिसकी वैल्यू आपने ऑब्वियसली लेंथ -1 रखनी पड़ेगी आपको। बिगनिंग लेस देन इक्वल टू लास्ट, तो आपको शुरू से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है। मिड करना है बिगनिंग प्लस लास्ट बाय 2। यदि आइटम आपको मिड में ही मिल जाता है तो आपका आंसर मिड हो जाएगा। यदि आइटम आपका ये मिड वैल्यू से ज्यादा है तो क्या होगा, बिगनिंग कहाँ से होगी, मिड +1, यानी कि यहाँ से +1 यहाँ से होगी, तो ये हमारा अब बिगनिंग हो गया और ये हमारा लास्ट हो गया। बट अगर आइटम की वैल्यू, आइटम क्या है जो हम चेक करना चाह रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू इससे कम है तो मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब मिड -1, तो लास्ट हो गया मिड -1, यानी कि शुरू तो यहाँ से करना है बट लास्ट यहीं तक रखना है। समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। ओनली दैट इज द मेन थिंग इन बाइनरी सर्च विच यू हैव टू सी। एंड नाउ हेयर
क्या होगा, एन आपको वही इनपुट करना है, डिजायर्ड लिस्ट की साइज, फिर आपने सेम वही लीनियर लिस्ट करना है, बट असेंडिंग ऑर्डर में आपको डालना है। सेम वही इनिशियलाइज किया आपने, वहाँ पे इनपुट किया, सेम उसी वे में जैसे लीनियर सर्च में किया था, सेम उसी वे में बाइनरी सर्च का जो फंक्शन आपने कॉल किया है, और फिर इंडेक्स और सेम वही चीज़ जो आपने लीनियर सर्च में मैंने आपको बताई थी वही यहाँ पे है। और इसका आउटपुट देखो, यहाँ देखिए सेम वही चीज़ें हैं जो आपने बाइनरी सर्च में करी थी, लेकिन इसमें बस क्या डिफरेंस आता है, कोड डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमको मिड निकालना पड़ता है और उसके बेसिस पे कंपैरिजन करने पड़ते हैं। और दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर कि ये सॉर्टेड होना चाहिए, असेंडेड या डिसेंडिंग जो भी होगा, पर ये सॉर्टेड होना चाहिए। यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर लिया है, ये डिसेंडिंग में भी हो सकता है। ठीक है, ये जो इंसर्शन है वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।